Hi, this is Sanath. Welcome to our classes, graviton classes. In the last class, we have discussed about the atomic models. What is about atom? The atomic various atomic models. So far, we have discussed about Rutherford model of atom. So at the end, we have certain drawbacks of Rutherford atomic model, for which we need to move on to Bohr's atomic model. So उससे पहले जानने से पहले ये है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स में क्या क्या दिक्कतें थी जिसके लिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल को हम लोग एडॉप्ट करते हैं. सो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. इससे जाने से पहले एक वैज्ञानिक के नाम आपको बता देता हूं. जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देने में माना जाता है. इन्होंने ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में जिक्र किया था और उसके बारे में ज़्यादा कुछ डाटा दिए थे. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल्स मूव ऑन टू एनी स्टेट, अगर वो मूव करता है कहीं भी, then it emits energy in the form of radiations. Rutherford atomic model state that there must be presence of a heavily charged particle, heavily positively charged surface within an atom which occupy though very less space but high mass. Now electrons are revolving around this positive nuclei. So his atomic model was compared with the solar system. In which the planets revolve around the sun. जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को माना गया कि ये एक पॉजिटिव न्यूक्लियाई है जिसके चारों तरफ ये घूम रहे हैं. Now the problem is that they have two aspects. One is when we compare the electron movement with the movement of the planets, then we have two aspects. One is the electrons the electrons are the charged particles. The electrons are charged particles, whereas the planets are not charged particles. And since electrons are microscopic, these are microscopic level particles. These are microscopic level of particles. Hence Newtonian laws could not be applied upon it. Newton's laws could not be applied upon these microscopic particles. Could not be applied. अब हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन लॉ तो सारी जगह, मतलब पृथ्वी के हर कोने में कहीं पे भी ब्रह्मांड में हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये बताया गया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अप्लाई नहीं हो सकता. हाँ, जब ये कब पता चला, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल अभी जनरली इन फिजिक्स अभी क्या होता है कि दो तरह के सब्जेक्ट रहते हैं. ये फिजिक्स को दो ब्रांच में बांटा गया है. एक है मैकेनिक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स.
quantum mechanics define the phenomena related to microscopic level of particles. It defines the phenomenon related to microscopic level of particles, whereas classical mechanics define those related to macroscopic level. Those related to macroscopic level. सर रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ में घूम रहे हैं आज द प्लैनेट्स अराउंड द सन, लेकिन ये प्रॉब्लम तब आई कि हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दीज आर चार्ज पार्टिकल्स, व्हेयरएज द प्लैनेट्स आर नॉट चार्ज पार्टिकल्स। हेंस न्यूटनियन लॉज, न्यूटन के दो तीन लॉ हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है इन केस ऑफ प्लैनेट्स, बट नॉट इन केस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। दूसरी बात है, जब मैक्सवेल ने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया, दिस इज EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, when a charge particles now supposing that a body is moving in a circular path, supposing a body is moving along a circular path, now what are the changes takes place? Now for example, suppose a body is at position A and then suppose it moves on to position B. हमको पता है, we all know that at every position in a circular path, a tangent to the point, at every point the circular path, a tangent at any point gives the direction of the field or the direction of the body. सपोज ये यहाँ पे है A पोजीशन पे, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो बताएगा कि इसका डायरेक्शन किस दिशा में है। B having direction this-ward, C having the direction this-ward, D. So as per Maxwell's electromagnetic theory, whenever a charge particle is revolving around a circular path, then it is continuously undergoing a change in the direction, even though its speed remains constant. Even though its velocity remains constant, it is undergoing a continuous change in the direction, for which there must be change in acceleration. Now when again his theory says, when a body moves, it emits energy in the form of radiations. Now when it moves, that means it is having an acceleration, a change acceleration, for which it must be, the electron must be emitting energy in the form of radiation. And when it goes on continuously, in a continuous manner, in a rigorous manner, then the energy must be lost, total energy must nullify, and the electron revolving must submerge into the positive nuclei. Once again I am explaining that whenever an electron is a charge particle is moving around a nucleus of positive charge, in circular motion there is always a change in the direction of the field at every point in a circular path, and the change in the direction leads to the change in the acceleration of the body. The change in acceleration, as per EMT theory, there must be emission of radiations, that is the energy. Since energy, the electron loses all its energy, that is total energy nullified, so the electron will move on to the nuclei or fall into the nuclei, thus leading to the destruction of the positive charge. अब ये अंदर किस लिए आएगा? दो रीजन है। एक, जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ में घूम रहा है तो यहाँ पे तो मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए सोडियम के केस पकड़ते हैं, केस ऑफ सोडियम के अंदर में यहाँ पे 11 ठो प्रोटॉन है और बाहर 11 ठो इलेक्ट्रॉन है। अंदर 11 ठो प्रोटॉन से बाहर 11 ठो इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे तो ये पॉजिटिव प्रोटॉन क्या करता होगा, खींच रहा होगा। सिंस दीज आर लूजिंग एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो अपना एनर्जी लॉस करते जा रहे हैं। तो लॉस अगर करते जा रहे हैं यानी कि ये प्रोटॉन अपने तरफ इनको खींच सकते हैं। द प्रोटॉन कैन इजीली मेक द इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू इट्स सरफेस एंड दस मेक द एटम बम्बार्ड, यानी कि एटम
फट सकता है, नष्ट हो सकता है, इट विल बी अनस्टेबल। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वी नो दैट atom is stable. So this was one of the limitations of Rutherford atomic model, which were later explained by Niels Bohr in his atomic model using electromagnetic theory and quantum theory of Max Planck. मैक्स प्लैंक एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जो कि क्वांटम के बारे में बताया गया थे, और मैक्सवेल थ्योरी और मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी, दैट इज ईएमटी एंड क्वांटम, दोनों को मिला के, दोनों का इस्तेमाल करते हुए बोहर ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। सेकेंड पॉइंट ऑफ लिमिटेशन वाज दैट ही कुडंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन्स, ही कुडंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन्स, he couldn't explain the spectral lines। ये क्या है, what are spectral lines? अब पहली बात है कि स्पेक्ट्रा क्या है। स्पेक्ट्रा यानी कि ये लाइट ही होगा। स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े हैं, लाइट पता है, लाइट। स्पेक्ट्रल यानी कि लाइट, स्पेक्ट्रल लाइन्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताता है कि whenever a charged particle is excited, whenever a charged particle is excited under high temperature or discharge tube, अगर टेम्परेचर किसी वस्तु का बढ़ा दिया जाए, देन उस पर रहने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन जो भी होंगे, जो भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो एक्साइट हो जाएंगे, यानी कि वो एक हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे। लेकिन और जब वो जाते हैं तब या फिर आते हैं, जब एनर्जी खत्म हो जाएगा तो वो रिटर्न आ जाते हैं। हमारे पास जितना दम वो खाने खा लिए, जितना हमारे पास बल होगा जाके खेल लेंगे, जब एनर्जी खत्म होगा तुरंत आके फिर खाना डाल देंगे, दाने डाल देंगे। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जब एनर्जी मिल जाता है वो क्या करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, यानी कि दे मूव ऑन टू द हायर एनर्जी स्टेट। फिर वो जब रिटर्न आते हैं दे एमिट रेडिएशंस, हम लोग बताया कि दे एमिट रेडिएशंस, वो एनर्जी छोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो ये जो रेडिएशंस है ये स्पेक्ट्रल लाइंस में डिफाइन किया जाता है, विच तब तक स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया था, तब तक स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी आ गया था, इसलिए स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में जिक्र किया गया। तो he was unable to explain the spectral lines of elements। फिर तीसरी बात है, he was unable to explain the movement of electrons and energy radiated। रदरफोर्ड ने तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो एक बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई है, बट ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ एनर्जी रेडिएशंस, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द energy radiated and the electrons, the movement of the electrons, he was unable to explain the movement of the electrons as well as the energy radiated। यानी कि उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं किसके चारों तरफ, एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ वो घूम रहे हैं। दूसरी बात है कि एनर्जी कैसा निकल रहा है, उन्होंने दो बात तो बता दी कि मूव कर रहे हैं, किस तरह से मूव कर रहे हैं, क्योंकि लिमिटेशन में हमको पता चल गया कि अगर वो सर्कुलर में मूव करता है और वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, देन उसके पास जो एनर्जी होगा वो धीरे धीरे लॉस होता जाएगा बिकॉज ऑफ ईएमटी थ्योरी। अब उसको तो उन्होंने एक तो एक्सप्लेन नहीं किया, दूसरी बात ये है कि एक्सप्लेन तो नहीं किए, बताया भी नहीं कि कैसे जा रही है। दूसरी बात है अगर जा रही है, आ रही है, जो भी हो रही है, उसका पास एनर्जी रेडिएट होते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। सो दिस वाज द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल व्हिच वाज लेटर एक्सप्लेन्ड इन द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल पे। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, अब ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल किस लिए, इसको सर नील बोहर ने दिया था, नील बोहर, इसको सिर्फ नील बोहर ने दिया था 1913 1913 में नील बोहर ने यह एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किया था, दो थ्योरी को यूज करते हुए, दो थ्योरी को देखते हुए, जो कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में प्रॉब्लमेटिक था। एक था मैक्सवेल्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और दूसरी थी मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। हालांकि ये आपके लेवल पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत जानकारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एक होता है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और दूसरी होती है मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनके बारे में लेते हुए बताया गया है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो होता है, जैसे कैसे रेडिएशंस निकलते हैं, उसके बारे में जिक्र किया था। दोनों को थ्योरी को मिला के नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसका नाम होता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो कोई भी मॉडल होता है तो उनके बारे में वो पुष्टिकरण करते हैं, तो उसमें कुछ डाटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पोस्टुलेट्स, कि उनकी थ्योरी क्या थे। पहली थ्योरी तो ये थी कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियाई, पॉजिटिव, हाँ हमको पता है कि वो अंदर में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ओवरऑल को हम लोग न्यूक्लियन बताते थे। अब न्यूट्रॉन के चार्ज नहीं होते, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, इसीलिए जो न्यूक्लियाई होगा वो ही पॉजिटिव चार्ज होगा। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई इन सर्कुलर अब देखिए, तब रदरफोर्ड का भी यही थ्योरी था, लगभग ऐसा ही थ्योरी था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने यहाँ पे सर्कुलर पाथ बताया, वही उनका लिमिटेशन था कि अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है देन इट मस्ट बी कंटिन्यूसली एंड एमिटिंग रेडिएशंस एज पर ईएमटी, मैक्सवेल के ईएमटी के हिसाब से। तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करता रहेगा और वो घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियर में गिर जाएगा, जो कि एटम को अनस्टेबल बना देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो फिर इन्होंने ऐसा ही क्यों बताया? नहीं, उनका एक दूसरा थ्योरी था। उनका जो पोस्टुलेट में दूसरा पॉइंट ये था कि ना इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं रिवॉल्व अराउंड दोज पाथ, अराउंड दोज सर्कुलर पाथ, दोज सर्कुलर पाथ, circular path of particular values, of particular values। हाँ, ये पर्टिकुलर वैल्यूज का मतलब क्या है? मतलब एक सर्कल में घूम रहा है, दूसरा सर्कल में पर्टिकुलर वैल्यू में, सर्कल में क्या है ना, जितने भी थियोरिटिकली जितने भी पाथ हो सकते हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियाई है, इसके चारों तरफ जैसे आप चाहे वैसा पाथ बना सकते हैं, सर्कुलर पाथ बनानी है तो जितने भी थियोरेटिकल पाथ बन सकते हैं, इन्फिनाइटली मेनी बन सकते हैं, लेकिन वो इन्फिनाइटली मेनी में नहीं जाएंगे, वो सर्टन पर्टिकुलर वैल्यूज में जाएंगे, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे। किसके पर्टिकुलर वैल्यूज? वहाँ पे हम लोग, उनका ड्रॉबैक ये था कि वो एनर्जी लॉस करता है, यानी कि वो उन सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे जहाँ पे पर्टिकुलर एनर्जी क्या होगा, पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यूज होगा, जहाँ पे पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यूज होगा। और इन्हीं पर्टिकुलर ऑर्बिट्स को उन्होंने बता दिया एनर्जी लेवल्स, या फिर स्टेशनरी स्टेट्स, एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी स्टेट। और एक बार बताता हूँ कि पहले उन्होंने पोस्टुलेट में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियाई, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई इन सर्कुलर पाथ। अब फिर उनका जो पहला थ्योरी था, पोस्टुलेट था, वो लगभग रदरफोर्ड मॉडल से ताल्लुक रखता था, यानी कि वहाँ पे रदरफोर्ड ने बताया था दैट ही एक्सप्लेन्ड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। हालांकि सर्कुलर के पर्टिकुलर वर्ड पे उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनके लिमिटेशन में आ गए कि अगर वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं देन इट मस्ट बी एमिटिंग एनर्जी, और वो आगे इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर गिर जाएगा। लेकिन बोहर के थ्योरी के हिसाब से द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दो सर्कुलर ऑर्बिट्स विद सर्टेन पर्टिकुलर वैल्यूज। अब किस चीज के पर्टिकुलर वैल्यूज? व्हाट पर्टिकुलर वैल्यूज? ऑफ एनर्जी वैल्यूज, ऑफ एनर्जी लेवल्स और एनर्जी वैल्यूज व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स।
अब स्टेशनरी स्टेट्स यानी कि स्टेशन में रहने वाले नारी नहीं, स्टेशनरी स्टेट्स यानी कि वो स्टेट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी, ये भी नहीं। स्टेशनरी स्टेट यानी कि ये एक ऐसा स्टेट है, ऐसा पोजीशन है जहां पे एनर्जी स्टेशनरी है। स्टेशनरी एनर्जी यानी कि फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू का एनर्जी है, ऐसा है जहां पे एनर्जी फिक्स्ड वैल्यू का हो सकता है। वहां पे वेलोसिटी तो बदलता है लेकिन एक्सीलरेशन तो होता है, लेकिन एनर्जी कंजर्व रहता है, एनर्जी इज नॉट लॉस्ट, एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। और उन्हीं को उन्होंने बताया एनर्जी लेवल्स और एनर्जी सेल, एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी सेल्स। अब उन्होंने एनर्जी सेल्स जो बताया, उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि ये जो एनर्जी सेल्स होते हैं हम लोग उनको अल्फाबेटिकल नामकरण कर सकते हैं अंदर से लेके बाहर। यानी कि अगर मान लीजिए ये एक न्यूक्लियाई है, ये एक एटॉमिक न्यूक्लियाई है, यानी कि प्रोटॉन इसमें मौजूद है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। थियोरेटिकली बहुत सारे ऑर्बिट बन सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि बोहर ने बताया था। तो ये पर्टिकुलर ऑर्बिट्स मान लीजिए, लेट अस कंसीडर दिस टू बी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। तो उन्होंने बताया कि दीज ऑर्बिट्स आर नेम्ड एज अल्फाबेटिकल लेटर्स, अंदर से नामकरण स्टार्ट होता है। द फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज द के ऑर्बिट या फिर के सेल, इसको बोलते हैं के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। ये होते हैं सेल, SHELL यानी कि घर। तो पहला ऑर्बिट नंबर 1 ऑर्बिट के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। अब मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, अभी मानते फिर वही सोडियम के केस पे आते हैं। सोडियम यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, यानी कि 11 प्रोटॉन इसके अंदर होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ये चारों तरफ में घूम रहे हैं इन्हीं पर्टिकुलर ऑर्बिट। हालांकि ये भी यहाँ पे एक ऑर्बिट बन सकता है, मान लीजिए ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है। हम लोग बहुत सारे ऑर्बिट तो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कंसिडर किए केवल उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्बिट्स को किए जिनका एनर्जी कांस्टेंट है, स्टेशनरी है। तो इन बोहर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन उन्हीं पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं और उनका नाम कुछ इस तरह दिया गया, के सेल, एम सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। अब बात आती है कि इनका यूजफुलनेस क्या है, हमको क्या एडवांटेजेस मिल सकता है। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम लोग एक बताए कि स्पेक्ट्रल लाइंस, इसके बारे में हम लोग बताए थे। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्पेक्ट्रल लाइंस कोई बड़े एटम का नहीं लिए थे, उन्होंने छोटा ही एटम लिया था। सबसे छोटा एटम जो है वो है हाइड्रोजन, तो उन्होंने हाइड्रोजन का एटम लिया। अब नील बोर कुछ तो आगे करते जिनके लिए, जिसके कारण हम आगे निकलते, तो नील बोर ने ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइन स्पेक्ट्रा, सिंगल लाइन स्पेक्ट्रा, अब मैं बोलता हूँ सिंगल लाइन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन एक छोटा एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो ये छोटा एटम है, तो उसके तहत उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर पाया। अब एक्सप्लेनेशन कैसा रहता है, मान लीजिए कि ये एक एनर्जी लेवल है, मानते हैं ऐसे कि मान लीजिए अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, ऐसे मानते हैं ऑर्बिट का एक पाथ है, ये ऑर्बिट रहता है, तो मैंने एक लंबाई में एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये एक पाथ है, तो मानते हैं कि ये के सेल है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चारों तरफ में घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दिए, यानी कि हम लोग इसको चार्ज करवा दिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवा दिए, या फिर हम लोग इस पे हाई टेम्परेचर अप्लाई करवा दिए, हाई टेम्परेचर जो भी हो, हाई टेम्परेचर अप्लाई करवा दिए या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसके साथ करवा दिए। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपना लेवल छोड़ देता है। अब एनर्जी इसके पास हो गया, अब जब पंख मिल गए तो उड़ना तो चाहिए, तो ये उड़ने लगे, लेकिन कुछ ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पाते। तो जितना एनर्जी मिलता है उस हिसाब से एक दूसरे स्टेट पे चले जाते हैं। मान लीजिए के डैश एक स्टेट है, मानते हैं ऐसा। अब के डैश कौन सा स्टेट है, के डैश एक एक्साइटेड स्टेट है, ए डैश एक एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि यहाँ तक वो एक्साइटमेंट में आ गया, लेकिन उससे आगे क्या करना है, उसके पास
आगे जाने के लिए एनर्जी नहीं है, उसके पास आगे जाने के लिए एनर्जी नहीं है। वो एक नॉर्मल स्टेट में था, अभी हम लोग उस पर क्या किए, एक हाई टेम्परेचर अप्लाई करवा दिए, अभी एक हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दिए। जब किसी को हाई टेम्परेचर हाई एनर्जी मिल जाता है तो अपने आप में क्या होता है, वो आगे निकलने लगता है। वो आगे निकल गया, एक दूसरे स्टेट पे चला गया जिसका नाम है एक्साइटेड स्टेट, और वो सेल का नाम है, मानते हैं ऐसा कि जितने सारे पॉसिबल सेल्स है उसमें से एक सेल है के डैश सेल, ऐसा मानते हैं। तो वो एक के डैश सेल पे चला गया। हमको पता है कि के डैश सेल एक एक्साइटेड स्टेट है, उसके पास जितना एनर्जी था वहां पर रह पाया, उसके बाद वो क्या करेगा, अब घर तो आएगा ही आएगा, तो वो रिटर्न आता है। जब, अब ये इंपॉर्टेंट है, जब वो रिटर्न आता है देन इट एमिट्स रेडिएशन। हम लोग बताए थे तब, इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ये जो रेडिएशन आते हैं ये एक एक लाइन की तरह आते हैं, ये एक एक लाइन की तरह आते हैं, और इन्हीं लाइनों को बोला जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। So he was able to explain those spectral lines. He was able to explain those spectral lines. ये आपकी क्लास के लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको ध्यान रखनी है क्योंकि आगे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये थी हमारी। और दूसरी ये है कि, और दूसरी बात इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो हम लोग वहाँ पे बताए थे कि इन जो लिमिटेशंस में हम लोग ये पाए कि एटम अनस्टेबल है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में हम लोग ये पाए कि एटम अनस्टेबल है। एक जगह पे उन्होंने जब बता दिया कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो घूमते हैं देन इट मस्ट बी एमिटिंग रेडिएशंस, अगर ये एनर्जी रेडिएशंस करते हैं देन इट मस्ट बी द इलेक्ट्रॉन मस्ट फॉल ऑन टू द एटम, एटॉमिक न्यूक्लियाई। अगर न्यूक्लियाई के ऊपर गिर जाता है देन एटम बिकम्स अनस्टेबल। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया था, लेकिन बोहर ने ये पूरा क्लियर करवा दिया कि एटम के चारों तरफ, एटम में न्यूक्लियाई के चारों तरफ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, एंड हेंस इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, जो कि रदरफोर्ड में डाउट, क्वेश्चन ऑफ डाउट था। तो ये रहता है हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। थैंक यू।